پتا کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی چاہیے۔ دانیل کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، دانیل خدا کا بندہ کس طرح دعا کرتا تھا۔ وہ جاتا اپنے کمرے میں، ہیکل کی طرف کھڑکی کھولتا اور دن میں 3 مرتبہ کیا ہے خداوند کے حضور جھکتا اور گھٹنوں کے بل ہو کر سجدہ ریز ہو کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو دارا بادشاہ کہتا ہے جا کے لوگ تیرے کے جھکے ہی نہیں، اس نے تو تیری بات کو ہی نہیں سنا، اس نے تو تیری بات کو فالو ہی نہیں کیا، یہ تو اپنے خدا کے آگے جھک رہا ہے، یہ تو اپنے معبود کی پوجا کر رہا ہے، اس نے تیری پوجا نہیں کی، تیری مورتی پر سجدہ نہیں کیا، بلکہ یہ اس کے سامنے جھک رہا ہے، اپنے معبود کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو دانیل کو پتا تھا کہ جس کے آگے میں جھکتا ہوں، جس کی پوجا، جس کی بندگی میں کرتا ہوں، وہ مجھے آزاد بھی کرائے گا۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا مجھے آگ کی کوئی پرواہ نہیں، تو مجھے آگ میں ڈال دے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، تو مجھے شیروں کی وان میں بھی ڈال دے، لیکن میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو کیا خدا نے اس کی دعا کو سنا؟ خدا نے سنا، شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔ اور خدا کا بندہ داؤد کتنی دفعہ جھکتا تھا؟ وہ 3 دفعہ دانیل جھکتا، لیکن خدا کا بندہ 7 دفعہ خدا کے حضور جھکتا تھا، خدا سے مانگتا تھا، خدا کے آگے فریاد کرتا تھا، اور خدا نے ہر بات میں اسے کیا دی؟ فتح دی۔ خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا، خدا نے اسے فتح بخشی۔ کیوں بخشی؟ کیونکہ وہ خدا کے حضور جھکتا، خدا کی بات کو فالو کرتا، سنتا خدا کی بات کو، اور خدا کی طرف متوجہ ہوتا، جو خدا کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح وہ کہتا ہے اے خدا لشکروں کے خدا میری دعا کو کیا کر سن۔ تو آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں خادمہ میں دعا کرتی، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے ہم خدا سے دور ہوتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، میری مسٹیک کہاں پر ہے، میں کس طرح خدا کے جھک رہا ہوں، کس طرح مجھے جھکنے کی ضرورت ہے، میں خدا کے آگے کس طرح جھکتا۔ اگر جھکتا نہیں تو ہمیں خدا نے جو ہمیں سب سے بڑا مددگار دیا ہے وہ خدا کا روح ہے، وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرنے والا، وہ ہمیں سکھانے والا، وہ ہمیں سمجھانے والا۔ یسوع مسیح نے کہا میں جاتا تھا کہ دوسرا وہ مددگار جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو لشکروں کا خدا کہتا ہے لشکروں کے خدا میری دعا کو کیا کر سن، اے یعقوب کے خدا کان لگا، کیا کر کان لگا کر میری دعا کو کیا کر سن لے، کان لگا کر میری دعا کو سن لے، اے خدا اے ہماری سپر۔ اب سپر جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم سپر کسے کہتے ہیں؟ سپر یہ جو کیا ہے یہ کس لیے لگائی ہے؟ حفاظت کے لیے لگائی ہے نا، تاکہ ہم گر نہ جائیں، ہمارے بچے نہ گریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدا بھی ہماری کیا ہے؟ سپر اور ہماری ڈھال ہے۔ خدا ہماری کیا ہے؟ سپر ہے، اور وہ بہت بڑی سپر ہے۔ وہ اپنے بچوں کو گرنے نہیں دیتا، اور اپنے بچوں کو گرے ہوئے کو بھی اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہماری کیا ہے؟ سپر ہے، وہ ہماری ڈھال ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تو میری کیا ہے؟ سپر ہے۔ اے یعقوب کے خدا میری دعا پر کیا لگا؟ کان لگا، کیونکہ تو میری کیا ہے؟ سپر ہے۔ خدا ہماری سپر ہے، خدا ہماری ڈھال ہے، وہ ہمیں گرنے نہیں دیتا۔ ہاللیلویا۔ اگر زبور 34 دیکھیں تو لکھا ہے فرشتہ یہوہ دا تمبو لگا کے بچاتا ہے انہاں نوں جو اس تو ڈر دے۔ وہ اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کو کمانڈ کرتا ہے جا میرے لوگوں کو بچا لے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ وہ اپنے فرشتوں کو کمانڈ کرتا ہے، اور اسی طرح کہتا ہے اور اپنے منصوب پر کیا کر؟ چہرے پر نظر کر، اپنے منصوب اپنے خادم پر، اپنے بندہ پر کیا کر؟ چہرے پر نظر کر، اپنے بندہ کو
पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। हालांकि हो सकता है कहता कि मैं तो शेर हूँ, मैं तो इतने लोगों पर मारता हूँ, मैं इतने लेकिन वो खुद ही खुदा की इजाजत से मारता था। और वहां पर भी उसने क्या की, खुदा की इजाजत ली कि मैं अब क्या करूं। वो खेमा में चला गया और अपने जाकर खुदा के आगे सजदा रेज़ हो गया कि खुदावंद अब मैं क्या करूं। तो इसी तरह वो कहता है अपने बंदा के चेहरे पर क्या कर, नजर कर, अपने बंदा पर नजर कर, अपने बंदा की पस्तहाली पर भी गौर कर। तो वो अपने बंदा की पस्तहाली पर क्या करता है, गौर करता है। वो अपने बंदा को छुड़ाता और बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से क्या है, बेहतर है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तेरी बारगाहों में, तेरी हैकल में, तेरे हुजूर झुकना 1000 से एक दिन क्या है, बेहतर है। हम सालों साल झुकते लेकिन नहीं सुनी जाती। वो कहता है मैं तेरी बारगाहों में एक दिन भी सजदा रेज़ हो जाऊंगा, वो कई 1000 से बेहतर है। हालेलुया। वो कहता है मैं ठट्ठोबाजों की मजलिस में नहीं खड़ा होता, ज़बूर 1 में देखे तो, ठीक है, मैं शरीरों की राह पर खड़ा नहीं होता, लेकिन वो खुदावंद की राह में चलता है। जो खुदा कहता है वो करता है। आज क्यों कामयाबी नहीं है, आज क्यों हम बरकत नहीं पा रहे, आज क्यों हम खाली के खाली हैं, आज क्यों हम कमजोर हैं। बाइबल है, हर किसी के पास बाइबल है। याद रखें ये शैतानों के पास भी है, जो चिले करते हैं ना उनके पास भी बाइबल है और इनमें से हवाले लेकर वो चिले करते हैं, लेकिन क्या है, उन पर अमल नहीं है। क्या नहीं, उन पर अमल नहीं है। तो आज जो अमल करता है, जो उसके कलाम को गौर करके से सुनता है, उस पर अमल करता है, कामयाबी, बरकत, सरफराजी उसी की है। कामयाबी, सरफराजी क्या है, उसी की है जो खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगाता है। इसलिए वो कहता है लश्करों के खुदा। तो यहाँ पर भी वो कहता है क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से क्या बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का क्या होऊंगा, दरबान होऊंगा। मैं उसके घर में क्या होऊंगा, दरबान। तो खुदा ने उसे कहां से उठाया था, समझ ले कि घोड़े ही ना जंगल में, बियाबान में जाकर भेड़ बकरियों को चरा रहा है। किसी की कोई हालत होती है वहां पर जब जाते तो मेरा ख्याल है कि पसीने की स्मेल, गंदे पांव, बाल उजड़े हुए और कोई हालत नहीं होती। और क्या है, खुदा ने उसे घोड़े से उठाकर क्या किया, तख्त पर बैठा दिया। कौम बनी इस्राइल का क्या बना दिया, अच्छा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बनाया, कि उसने खुदा के साथ दिल लगाया हुआ था। वो खुदा की शुक्रगुजारी करता था, वो खुदा की तमजीद करता था। इसलिए खुदा ने उसे घोड़े से उठाकर तख्त पर बढ़ा दिया, कौम बनी इस्राइल का बादशाह बना दिया। हालेलुया। तो उसकी हसरत के लिए कौन भागा फिरता था, साउल। तो उसने साउल पर भी हसरत ना किया, मार सकता था ना उसको भी, लेकिन उसने उसको भी ना मारा। तो उसका बदला किसने लिया, खुदा ने खुद ही लेगा। इसलिए कि खुदा जो है हमें सरफराज करना चाहता है, जानता है, लेकिन हम नहीं हो सरफराज होते। हम समझते हम इसको उठाते तो बहुत बड़ा काम करते हैं, इसको उठाने से कोई काम नहीं है, इस पर अमल करना ही बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है, मैं तेरी हैकल में क्या हूँ, दरबान, दरबान। मैं उसमें झुका रहता हूं, मैं उसकी तेरी हजूर झुका रहता हूँ। दिहाड़ी में दिन में 7 बार असी एक बार झुक के कहने बस साढ़े वर्गा कोई दुआ ही नहीं करता, साढ़े वर्गा कोई खादा भी नहीं। लेकिन वो कितनी दफा झुकता था, 7 बार। तो खुदा ने उसको कितनी बरकत दी, बादशाह बनाया, फिर उसके घराने के साथ अहद भी किया, फिर उसकी नस्ल से कौन हुआ, यीशु मसीह। यीशु मसीह, कितनी बड़ी ब्लेसिंग। आमीन, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम ब्लेसिंग पाए, हम ब्लेसिंग क्या किरदार है, तो फिर हमें झुकना पड़ेगा, कष्ट करनी पड़ेगी, उसके कदमों में आना पड़ेगा, अपने आप को सजदा रेज़ करना पड़ेगा, अपने आप को पस्त करना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, तब जब फिर हमें बरकत मिलेगी।
हालेलुया। ऐसे बरकत नहीं मिलेगी, हम कहेंगे ऐसे बरकत मिलेगी। फिर वो कहता है शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावन का खुदा आफताब और सिपर है। क्या कहता है? शरारत के खेमों में बसने से ज्यादा पसंद किसको करूंगा? खुदा के घर में। और कहता है क्योंकि खुदावंद खुदा क्या है? आफताब है और सिपर। और क्या है? मेरी सिपर है। अब आफताब किसको कहा जाता है? सूरज को। सूरज को। खुदा ने कहा कि मैं खुदा को कह रहा है कि तू मेरा क्या? आफताब और मेरी सिपर है। तू मुझे तारीकी में से भी क्या करेगा? निकालने की कुदरत रखता है। इसलिए ज़बूर 23 में क्या कहता है? खुदावंद मेरी जुबान है, मुझे कमी ना होगी, क्योंकि वो मुझे हरी हरी जगहों में ले जाता है। वो हमारी सिपर है। आफताब वो हमें तारीकी में से निकालने की कुदरत रखता है और हमारे चेहरे पर जलवागर होता है, हमारे चेहरे को चमका देता है। वो हमारी सिपर है। वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें संभाल लेता है, वो हमें बचा लेता है। इसी तरह जब हम खुदा के कदमों में आएंगे, फिर कहता है खुदावंद मेरा क्या है? फजल और जलाल बख्शेगा। फजल और क्या करेगा? जलाल बख्शेगा। अब अफजल, फजल को कहा जाता है अफजल भी है, बेहतरीन भी है, आला भी है। फजल बख्शेगा। फजल बख्शने वाला क्या है? वो हमारा अफजल और जलाल बख्शने वाला खुदा है। वो हमें संभालने वाला खुदा है। कहता है सारी दुनिया तुझे छोड़ जाएगी लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा। वो अफजल है, वो इब्तिदा इंतहा है, वो अव्वल आखिर है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। वो हमारा बादशाह है, वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है, वो हमें क्या करता है? छुड़ाता है। और कहता है और वो रास्त रोज से कोई नेमतबाज ना रखेगा। रास्त रोज से, जो रास्तबाज है, जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदावंद के कदमों में आते हैं। याद रखे चीजों, हम कहते हैं हमारे पास अच्छा घर आ गया है, हमारे घर में अच्छा खाना पीना है, हम इससे बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे लिए कुछ और भी है। वो क्या है? हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी कहाँ पर है? आसमान पर है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਕਰਾਂ। कभी आसमान की बादशाही की भी फिक्र की थी? हमें अपने खुदावंद आसमान पर भी फिक्र करने की जरूरत है। वो की कहते कर लो तैयारी, यीशु आने वाला जी। ठीक है, हमें अपने खुदावंद की भी क्या करनी चाहिए? शुक्रगुजारी करें। कहते हैं माल आसमान ते जोड़ो, उसे ना कोई जंग, ना कोई कीड़ा, ना कोई चोर, ना कभी लगान वाला जे। सानू आसमान की भी फिक्र करनी चाहिए। ऐसे अपनी फिक्र अपने बच्चों की फिक्र भी करते रहने करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हमें कलाम यहाँ पर बहुत सी जिन्होंने बाइबल स्टडी भी की होगी, कलाम हमें ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों की फिक्र करते रहो। बहुत से लोग कहते जी ड्यूटी कर लो भी बहुत बड़ी इबादत है, बच्चों को संभालो भी बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन बाइबल इस बारे में कुछ नहीं हमें बताती। क्यों सिस्टर बाहर बैठे बताती? बाइबल हमें नहीं बताती। फिक्र करनी। वो कहता है जो मुझसे बढ़कर अपने बच्चों को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है, जो मुझसे बढ़कर अपने शोहर को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। तो वो क्या कहता है? मेरी शुक्रगुजारी करो, मेरे कदमों में आ जाओ। हालेलुया, मेरी शुक्रगुजारी करो, मेरे कदमों में आओ, मैं आसमान खोल कर तुम्हें क्या दूंगा? बरकत दूंगा। इसी तरह हम देखते हैं 85 है, उसमें देखते हैं 8 आयत में क्या लिखा है? मैं सुनूंगा। इसी तरह इसी में है, देखिए मैं क्या करूंगा? सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। क्या कह रहे हैं? मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या सारे बोले मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। क्या करेगा? सलाम। कोई फजूल बात,
नहीं कोई गाली, नहीं हसद, तफरीका, न तफाकी, ऐसी कोई बात उसने क्या करेगा? नहीं। नो, बल्कि वो क्या करेगा? सलामती की बातें करेगा। पहले वो क्या कहता है? मैं सुनूंगा। सबसे बड़ी अहम और उत्तम बात क्या है? मैं सुनूंगा, कान लगाकर सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। फिर वो कहता है क्योंकि अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से क्या करेगा? सलामती की बातें करेगा। हालेलुया। वो आनी करेगा इन्हू छड़ दे, ओनू छड़ दे, इहदे खिलाफ गल कर दे, ओहदे खिलाफ कर दे, ना घर जाड़ दे। नो, वो सलामती की बातें करेगा। फिर वो कहता है पर वो फिर हमाकत की तरफ रजू ना करेंगे। यकीनन उसकी नजात उससे डरने वालों के करीब है। यकीनन उसकी नजात किनके करीब है? जो उससे डरते हैं, जो खुदावंद के कलाम को गौर से देखते हैं, जो खुदावंद की राहों पर चलते हैं, जो अपनी राह को बिगाड़ते नहीं हैं, जो बातों बातों में खुदा नहीं करते। खुदा उनकी क्या करेगा? सुनेगा। वो खुदा उनसे बात करेगा तो वो क्या करेगा? सुनेगा। और खुदा उनके क्या होगा? करीब होगा, ताकि जलाल हमारे मुल्क में क्या होगा? बसेगा। क्या बसेगा? जलाल बसेगा। अगर हम देखें ज़बूर 4 में मेरा ख्याल लिखा हुआ है, रास्तबाजों की दुआ से क्या होता है? शहर सरफराज होते हैं। रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराज होता है। तो यहाँ पर भी तो वो यही कह रहा है ताकि जलाल हमारे मुल्क में बसे। शफकत और रास्ती बाहम मिल गई है। शफकत और क्या है? रास्तबाजी बाहम मिल गई है, एक हो गई है। क्या हो गई? एक हो गई। जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी रास्तबाज बहनों के लिए और लोगों के लिए भी दुआ करते हैं तो हमारी दुआ पूरा असरअंदाज होती है। हालेलुया। पूरा असरअंदाज होती है जब हम दुआ करते। कहते हैं शफकत और रास्तबाजी बाहम क्या है? मिल गई। सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का क्या लिया है? बोसा लिया। बोसा कितने लोग जानते हैं? सारे जानते हैं। हालेलुया। एक दूसरे का क्या लेते हैं? कौन ले रहे हैं यहाँ पर? सदाकत। ते असी जो किसी हाथी मिलाना ते बोसे ते छड्डो, असी हाथ भी इन्ना की मिलाते हैं, है ना? हाथ भी इतना ही मिलाते हैं। मिलते नहीं, हसद होता है और मुंह से मुस्कुरा के कहते हाँ जी की हाल है भैन जी। मिलना तो बोसा तो जरूर दूर की बात है, ते असी ते मिलते भी चंगी तरह ने, गले नहीं मिलते। और यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। रास्ती ने और क्या सलामती ने क्या लिया? एक दूसरे का भरोसा लिया है। रास्ती जमीन से निकलती है। रास्ती कहाँ से निकलती है? जमीन से निकलती है। और हम किससे बनाए गए हैं? मट्टी से बनाए गए ना। तो हमें से क्या निकलनी चाहिए? रास्ती निकलते। साढ़े अंदर तो रास्ती होंगी नहीं, नफरत तो सवा, एक दूसरे दे बरखलाफी तो सवा, साढ़े अंदर तो रास्ती है ही नहीं। कितने लोग कहते हैं नहीं है ना, लेकिन खुदा का कलाम कहता है। और यहाँ पर लिखा है और सदाकत आसमान पर से क्या करती है? झांकती है। सलामती जमीन से है और सदाकत कहाँ से है? आसमान से है। और कहते हैं जो कुछ अच्छा है वो ही खुदावंद को क्या करता है? अता फरमाएगा। और हमारी जमीन अपनी पैदावार देगी। सदाकत उसके आगे आगे क्या करेगी? चलेगी। सदाकत सलामती उसके आगे आगे चलेगी जब हम खुदावंद से प्यार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का बंदा 9 ज़बूर 128 में कहता है जब वो खुदावंद की रास्ती को देखता है, खुदावंद की मोहब्बत को अपने अंदर लेता है, खुदावंद का जलाल उसकी जिंदगी में होता है, खुदावंद उससे बरकत पर बरकत देता है, तो फिर ज़बूर 128 में कहता है अब मैं पूरे दिल से तेरी क्या करूंगा? शुक्रगुजारी करूंगा। पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, जब ये हमारी जिंदगी के अंदर होगी,
जब ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर होगी, जब रास्ताबाजी होगी, तब हमारी शुक्रगुजारियां भी कबूल होंगी, वरना कोई नहीं जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।